Good morning, students. So let us start with our today's class, students. So as you know that today we'll be starting with a literature chapter. So we had finished 5 chapters, and from 6th chapter onwards, मतलब chapter number 6 से students हम लोग का हाफ ईयरली का कोर्स स्टार्ट होगा, as you know. Okay. तो today we'll start with the chapter 6. एंड एज यू कैन सी कि मैंने आप लोगों को वर्ड मीनिंग्स की शीट सेंड कर दी हैं. ओके, तो फर्स्ट थिंग आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैंने सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन कर लिए हैं. ओके, तो फर्स्ट पेज के जितने भी वर्ड्स आपकी वो शीट में दिए हैं, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके एग्जाम्स में आएंगे, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं, जो टफ वर्ड्स हैं, ओके, वो सारे आप पहले अंडरलाइन करेंगे आज. ओके, एंड देन जैसे ही अंडरलाइन होते हैं, आई स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट. फिर हम चैप्टर को रीड करेंगे एंड देन वील come on to explanation. Okay, so first of all I am dictating and I'm telling you the words that you have to underline, so that जैसे मैंने underline किया है students आप वैसे ही underline करेंगे. Okay, so the first chapter that we're going to start for our finals is chapter number 6, Madam Rides the Bus. Okay, so these are the words, as you can see I have underlined. So the first word student is curious, that you have to underline. Okay, the word is curious. The second word is favorite. Okay, and as you can see pastime word already highlighted है students, so you can underline this as well. But ये आपको पता है students, ये आपकी शीट में नहीं दिया हुआ है, but it's important. Okay, so then comes your pastime, and then next word is unusual experiences. Next word is fascinating. Okay, and then next word is source of unending joy. Okay, till joy you have to underline. Then next paragraph, a tiny wish. Okay, then the next word is crept into her head. Okay, crept into her head. Then come down to the next paragraph. Okay, the next word is conversations. Okay, conversations. The next word is neighbors. Okay, then the next word is discreet. Okay, then come down to the next paragraph, underline the word fair. Okay, fair. Then there's no such word in this paragraph, so come down to the next paragraph and underline the word calculated. Okay, calculated. Okay, then the next word is recalculated. Okay, so these are the words that we have to cover in the first page. जब हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे स्टूडेंट्स, तो मैं नेक्स्ट पेज में आपको वर्ड मीनिंग्स अंडरलाइन करवाऊंगी. ओके, तो फर्स्ट पेज को हम स्टार्ट करते हैं, आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं. जितना हो पाएगा वन सेशन में हम लोग उतनी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन आई गिव, एंड देन वी विल मूव ऑन टू फॉर, and then leftover part we will do in our next class. Okay, so listen to my explanation students very carefully. कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आए, you can ask me question later on. And okay, word meanings are already given to you. Okay, so let us begin with the chapter then. Okay, so 6th chapter, Madam Rides the Bus. Okay, so it's about a madam who is going to ride the bus. Okay, राइड का मतलब आपको पता है, राइड का मतलब क्या होता है, जो ट्रैवल करेगी, सफ़र करेगी बस में. ओके, सो मैडम यहाँ पे राइड करेगी, मतलब चलाएगी नहीं स्टूडेंट्स. ओके, शी विल राइड इन द बस, शी विल ट्रैवल इन द बस. ओके, so let us start with them. There was a girl named Valam Mai. Okay, Valium Mai. Valium and Mai. Okay, so there was a girl named Valium and Mai. As you can see, Valium and Mai. Okay, so this is a basically South Indian name students, जो South India में use होता है. Okay, who was called Vali for short. तो जो उसका रियल नेम था वो क्या था, वालीलम माई, और जो उसका शॉर्ट नेम या हम लोग उसको निक नेम कह सकते हैं, या जो उसको लोग प्यार से बुलाते थे, शॉर्ट में बुलाते थे, वो क्या बुलाते थे, वाली.
सो द गर्ल्स नेम इज वाली. तो हम पूरे चैप्टर में वाली यूज किया है स्टूडेंट्स. सो वील बी यूजिंग द वर्ड वाली. ओके. She was 8 years old and very curious about things. So उसकी एज कितनी थी, जितनी डिस्क्लोज की है, जितनी हमें स्टूडेंट्स बताई है चैप्टर में, दैट शी वॉज 8 year old, 8 साल की थी वो स्टूडेंट्स, एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. वेरी क्यूरियस. क्यूरियस का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? नाउ हियर व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपनी शीट में भी मीनिंग देखते हुए चलना है. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, बट आपको शीट में, एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, कि आपकी शीट में इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीनिंग बोथ आर गिवन. सो अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आती है तो आई बी टेलिंग यू द हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. तो क्यूरियस का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? वॉन्टिंग टू नो और लर्न समथिंग. तो जो पर्सन वो कैसा होता है? जिसको नई चीज़ें लर्न करने का शौक होता है और नई चीज़ों के बारे में जानने का शौक होता है, उस पर्सन को क्या कहते हैं? क्यूरियस कहते हैं. ठीक है. कुछ जानने या सीखने का उत्सुक होता है जिसको उसको क्या कहते हैं? क्यूरियस कहते हैं स्टूडेंट्स. सो द पर्सन वांटिंग टू नो और लर्न समथिंग इज अ क्यूरियस पर्सन. ओके. हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट. ओके. तो उसका फेवरेट पास टाइम क्या था? अब नाउ व्हाट डज फेवरेट मीन्स, जो मैंने अंडरलाइन किया, दैट मीन्स एन इम्पॉर्टेंट वर्ड एंड टफ वर्ड. फेवरेट क्या होता है स्टूडेंट्स? समथिंग यू लाइक मोर. वैसे आपको सारी चीज़ें पसंद है, बट फेवरेट चीज़ कब हो जाती है स्टूडेंट्स? जब आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है. व्हेन यू लाइक समथिंग मोर. फॉर हिंदी का मीनिंग इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? अपना मनपसंद. ठीक है. अपना मनपसंद एज इन इस चीज़ से ज़्यादा कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है. दिस इज़ द फेवरेट चीज़. ये चीज़ आपकी फेवरेट है, मतलब फेवरेट है, इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं आएगी, सबसे ज़्यादा आपको पसंद है. ठीक है. इसको फेवरेट कहते हैं. नाउ व्हाट डज पास टाइम मीन्स? एज यू नो, पास्ट और टाइम, समथिंग वन डज फॉर इन्जॉयमेंट. जो कोई चीज़ हम इन्जॉयमेंट के लिए करते हैं, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए करते हैं, जो हमारी बेसिकली हॉबी जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है? पास टाइम. जो आप अपने लेजर टाइम में करते हैं, जब आप फ्री होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों का पास टाइम है टीवी देखना, कार्टून्स देखना, तो दैट इज़ योर पास टाइम. मतलब जब आप बिल्कुल फ्री होते हैं एंड जब आपके पास कुछ काम नहीं होता, तो उस टाइम में आप क्या करना चाहते हैं, दैट इज़ योर पास टाइम. सो समथिंग वन डज फॉर एन्जॉयमेंट, उसको क्या कहते हैं? पास टाइम कहते हैं. जो अपने खाली समय में किया जाने वाला काम हो. ठीक है. दैट इज कॉल्ड पास टाइम. Was standing in front in the front doorway of her house watching what was happening in the street outside. तो वाली का फेवरेट पास टाइम क्या था? वो स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे. डोरवे मतलब जहाँ से आपका बेसिकली हाउस स्टार्ट करता है, जो हाउस की स्टार्टिंग का डोर होता है उसको डोरवे कहते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है. डोरवे ऑफ अ हाउस. ठीक है. तो वहाँ वो डोर के जो फ्रंट जगह होती थी, वहाँ शी यूज टू स्टैंड एंड वहाँ शी यूज टू वॉच वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. तो स्ट्रीट के बाहर, दैट मीन्स उसके घर के बाहर की स्ट्रीट के बाहर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही थी, कौन आ रहा था, कौन जा रहा था, उसका वो फेवरेट पास टाइम था. वो वहाँ बाहर खड़े होके बाहर की सारी एक्टिविटीज़ अपनी डोर से, घर के डोर से शी यूज टू वॉच. वो उसका फेवरेट पास टाइम था. It gave her many new unusual experiences. Okay, it gave her many मतलब उसको ये देखना. ठीक है. When she used to watch what was going outside in the street, जब वो देखती थी कि स्ट्रीट में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या who were coming and who were going, जब वो ये सब देखती थी, तो it gave her many new unusual experience. Now what does unusual experiences means? अनोखे अनुभव. अनयूजुअल मतलब जो अभी तक आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हुई ना हो. समथिंग दैट हैज़ नॉट हैपेंड विद यू और विद एनी वन बिफोर. आपके लिए वो क्या होता है? अनयूजुअल. यूजुअल क्या होता है? जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपके साथ चीज़ें होती रहती है, वो यूजुअल होती है. जैसे हमको कहते हैं दिस इज़ योर यूजुअल एक्टिविटीज़, राइट.
जब आपके साथ ये हो रही हैं। बट अनयूजुअल एक्टिविटीज़ क्या हुई, जो कभी आपके साथ नहीं हुई, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अनोखे। एंड एक्सपीरियंसेस मतलब जितनी भी लाइफ में आपके साथ चीज़ें हुई हैं, जितने भी अनुभव हुए हैं लाइफ में, उनको क्या कहते हैं, एक्सपीरियंसेस कहते हैं। सो जो वो एक्टिविटीज़ बाहर देखती थी, उससे उसको अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस होते थे, वो अनयूजुअल चीज़ों के बारे में जानती थी। बिकॉज यू नो स्टूडेंट्स, जब आप घर के अंदर रहते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अभी कोविड के टाइम पे आप घर के अंदर हैं, आपको बाहर की कोई न्यूज़ पता चल रही है, अगर फॉर एग्जांपल तब के टाइम पे तो टेलीविज़न भी नहीं होता था, राइट। तो तब लोगों के लिए क्या एक्टिविटी होती थी, बाहर जाना आने में ही जो न्यूज़ उनको पता चल रही हैं अबाउट द सिटी, अबाउट इंडिया, जो भी न्यूज़ है वो उनको आने जाने के थ्रू पता चलती थी। तब के टाइम पे टेलीविज़न नहीं होता था। तो सेम या जब आप कुछ पर्टिकुलर 3 मंथ्स कोविड के टाइम पे आप लोग जब घर में बंद थे स्टूडेंट्स, तो आपके साथ भी ये हो रहा था कि आप सिर्फ घर की एक्टिविटीज़ को नोट कर रहे थे, एंड वो आपकी डेली एक्टिविटीज़ थी, यूजुअल एक्टिविटीज़ थी। बट जब वो बाहर देखती थी वाली, तो उसके लिए नई नई चीज़ें शी यूज टू लर्न, शी यूज टू लर्न न्यू थिंग्स अबाउट हर सराउंडिंग्स, कि कौन आ रहा है, शी यूज टू नोटिस न्यू थिंग्स। ओके, सो उसके लिए कैसे थे, अनोखे अनुभव थे, unusual experiences थे। Okay, I hope the explanation of the first paragraph is clear to you. Now we'll move on to the second paragraph. Okay, the most fascinating thing of all was the bus. Now जो उसको ज़्यादा सबसे ज़्यादा चीज़ fascinate करती थी, fascinating, fascinating का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अट्रैक्शन, इंटरेस्टिंग। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आकर्षक, और इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है, मोहक। तो जो चीज़ें उसको फैसिनेटिंग लगती थी, फैसिनेटिंग मतलब जो उसको अट्रैक्टिव लगती थी या बेसिकली इंटरेस्टिंग लगती थी। अब कैसी चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव लगेंगी, जो आपका करने का मन करेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो वो चीज़ें जो उसको करने का मन था, वो बेसिकली उसको सबसे ज़्यादा एक एक्टिविटी थी जो वो पूरे टाइम नोटिस करती रहती थी, वाइल शी यूज टू स्टेयर आउटसाइड, वाइल शी यूज टू सी आउटसाइड, एंड दैट वाज the bus that traveled between her village and the nearest town. तो उसको सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी अट्रैक्टिव या फैसिनेटिंग या हिंदी में हम बोलें तो आकर्षक लगती थी, वॉज द बस, बस राइड जो थी, जो ट्रैवल करती थी उसके विलेज से। हर विलेज मतलब उसका खुद का विलेज, एंड द नियरेस्ट टाउन, नियरेस्ट मतलब जो पास में ही कोई टाउन रहा होगा, वहाँ पे वो बस ट्रैवल करती थी। नाउ दिस this statement makes us understand students कि वाली was a person or a citizen of village, जो village में रहती थी। तो हमें एक और डिटेल उसके बारे में पता चली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता चला, दैट शी वॉज 8 year old, देन शी वॉज क्यूरियस। वो कैसी थी, क्यूरियस थी। क्यूरियस पर्सन क्या होता है, जिसको नई चीज़ें लर्न करने का मन करता है। उसका फेवरेट पास टाइम हमें पता चला कि उसका फेवरेट पास टाइम क्या था, कि वो घर से अपने खड़े होके, डोरवे पे खड़े होके बाहर की एक्टिविटीज़ नोट करती थी जो उसकी स्ट्रीट में चलती थी। फाइन, देन हमने एक और चीज़ उसके बारे में क्या नोटिस की, कि वो उसके लिए सबसे फैसिनेटिंग या सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे आकर्षक चीज़ क्या होती थी, जो वो एक्टिविटीज़ देखती थी उनमें से सबसे आकर्षक या इंटरेस्टिंग चीज़ उसको क्या लगती थी, बस जो ट्रैवल करती थी उसके विलेज से टू द नियरेस्ट टाउन। दैट मीन्स वो विलेज में रिसाइड करती थी, वो विलेज में रहने वाली पर्सन थी। तो जो बस टाउन में जाती थी उसको बहुत अच्छा लगता था कि टाउन में जा रही है। ऑब्वियसली जब आप किसी छोटी सिटी में रहते हैं स्टूडेंट्स, या छोटे विलेज में रहते हैं, एंड जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है या मौका मिलता है कि आपको बाहर जाने का या उससे बड़ी सिटी में जाने का मौका मिले, देन ऑब्वियसली आप क्या होते हो, एक्साइटेड होते हो, आपको वो चीज़ इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव लगती है कि वहाँ की लाइफ कैसी होगी। सो वैसे ही सेम वाली यूज टू इमेजिन एंड शी यूज टू बी fascinated, that means she used to be attractive towards the ride, the bus ride, जो कहाँ से होके जाती थी, विलेज से होके टाउन में जाती थी। ओके, the sight of the bus filled each time with a new set of passengers. अब उसको बस में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती थी स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द साइट ऑफ द बस, साइट मतलब वो देखना, वो सीन, साइट को क्या कहते हैं, सीन कहते हैं। द सीन ऑफ द बस फिल्ड each time with a new set of passengers. तो ऑब्वियसली जो विलेज से टाउन जाते थे तो वो पैसेंजर्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स, जो पीपल ट्रैवल करते हैं, ठीक है।
जो पीपल ट्रैवल कर रहे होते हैं, जिसे हम ट्रेन में जो ट्रैवल कर रहे होते हैं उनको पैसेंजर्स बोलते हैं। तो ठीक है, तो जो पीपल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं थ्रू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब जो इस चीज़ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स की मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ले जाया जाता है और जो लोग जाते हैं उनको पैसेंजर्स कहते हैं। तो हाँ, वो नोटिस करती थी कि बस में हर टाइम न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स होते थे या न्यू सेट ऑफ पीपल होते थे जो विलेज से टाउन में जा रहे थे। तो उसको एक तो ये चीज़ अच्छी लगती थी। वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वाली। तो उसके लिए ये क्या था, अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय। अब अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, लुक इन योर शीट्स। ओके, जो शीट्स आपको वर्ड मीनिंग की मिली है, इट मीन्स ब्रॉट इमेंस हैप्पीनेस। इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा, अनलिमिटेड। ओके, तो ये देखकर उसको क्या लगता था, ये सोर्स था किस चीज़ का, अनएंडिंग जॉय का, विच मीन्स जब उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। ठीक है, अपार प्रसन्नता अनुभव करना। ठीक है, सोर्स मतलब अनुभव करना। ठीक है, वो सोर्स है, जिस जगह से आपको वो चीज़ मिल रही है उसको सोर्स कहते हैं। तो उसके लिए ये जो पूरा साइट था, ये जो पूरा सीन था, जब वो बस में देखती थी पैसेंजर्स को बैठ के जाते हुए, तो ये उसको क्या बहुत ज़्यादा क्या देते थे, हैप्पीनेस देते थे। ठीक है, अनएंडिंग जॉय। अब आपको पता है अनएंडिंग जॉय का मतलब अपने आप में स्टूडेंट्स क्या होता है, हैप्पीनेस होता है। और अनएंडिंग मतलब जो हैप्पीनेस कभी रुकती नहीं है। इमेंस मतलब अनलिमिटेड। तो ये चीज़ उसको हमेशा ही हैप्पी रखती थी, जब भी वो देखती थी शी यूज टू फील हैप्पी। कभी भी वो चीज़ उसको अनहैप्पी नहीं करती थी। शी ऑलवेज यूज टू बी हैप्पी बाय सीइंग द पीपल ट्रैवलिंग इन द बस, कि पीपल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ओके, और उसका बेसिक क्या था कि उसको भी एक दिन ट्रैवल करने का मन था उस बस में, तभी वो देख के बहुत खुश होती थी। ओके, क्योंकि दैट यूज टू be interesting and attractive to her. Okay, now coming on to the third paragraph. Day after day she watched the bus. तो डे आफ्टर डे, दिन निकलते गए ऐसे ही, एंड वो बस को सेम वे में वॉच करती रही अपनी ही डोरवे से। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश, और ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, धीरे धीरे। ओके, ग्रेजुअली, तो ग्रेजुअली अ टाइनी विश crept into her head. तो अ टाइनी विश, एज यू नो, विश मतलब क्या होता है, कोई चीज़ मांगना। ठीक है, एक छोटी सी अभिलाषा या आकांक्षा जिसको बोलते हैं, अ स्मॉल विश। ठीक है, टाइनी मतलब स्मॉल, और छोटी सी जो उसकी क्या थी, ड्रीम बोल सकते हैं, या उसका मन था, या उसकी आकांक्षा थी, वो क्या थी, क्रेप्ट इनटू हर हेड। और क्रेप्ट मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, मस्तिष्क में प्रवेश करना। क्रेप्ट मतलब आना। ठीक है, धीरे धीरे आना। और इनटू अ हेड, हेड का मतलब आपको पता है माइंड, जिसको हम हिंदी में मस्तिष्क बोलते हैं। तो ये जो टाइनी सी विश थी, या टाइनी सा जो उसका ख्वाहिश थी, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, वो उसके दिमाग में आई। एंड क्या थी, शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस। और उसके दिमाग में क्या विश आई स्टूडेंट्स, दैट शी वॉन्टेड टू राइड, मतलब उसको एक राइड, या एक बेसिकली राइड को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, सैर जिसको कहते हैं। ठीक है, उसको एक राइड लेनी थी, किस पे, बस में। ठीक है, वैसे ही बस में लेनी थी, इवन इट जस्ट वंस, चाहे वो एक ही बार के लिए क्यों ना हो, बट उसको वो राइड लेनी थी इन दैट पर्टिकुलर बस। और शी वॉन्टेड टू ट्रैवल, उसको ट्रैवल करना था विलेज से टाउन में। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. So we'll try to complete this paragraph also today. Okay. Over many days and months, Wali listened carefully to conversations between her neighbors. तो over many days मतलब जितने, many days and months, जितने दिन निकले, and she used to see the bus, and Wali listened carefully, and Wali ने क्या किया, she listened carefully to the conversations. Conversations का मतलब क्या होता है, हिंदी में वार्तालाप होता है, लेकिन कॉन्वर्सेशंस क्या होता है, टॉक बिटवीन टू पीपल। व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर, तो वो एक टाइप की कॉन्वर्सेशन हो गई स्टूडेंट्स। ओके, लाइक इफ आई एम टॉकिंग टू समबडी, तो वो क्या हो गई, कॉन्वर्सेशन हो गई। हम लोग के बीच में आपस में बातचीत को, जिसको वार्तालाप कहते हैं हिंदी में, वो कॉन्वर्सेशन होती है। तो वाली क्या करती थी, शी यूज्ड टू लिसन
केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनती थी कॉन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स. नेबर्स में बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, आपके पड़ोसी, जो आपके हाउस के अगल बगल रहते हैं, जो आपके बेसिकली आपके नेबर्स कहलाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सो नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस. तो वो किसकी कॉन्वर्सेशन सुनती थी, पहले तो अपने नेबर्स की सुनती थी, एंड द पीपल रेगुलरली यूज द बस, जो रेगुलर बस में ट्रैवल करते थे उनकी कॉन्वर्सेशन सुनती थी वो. ठीक है. अब रेगुलर क्यों, जो ट्रैवल करते थे उनकी कॉन्वर्सेशन क्यों सुनती थी, बिकॉज उसको बस के बारे में जितनी डिटेल्स मिलती थी उसको जानना पसंद था, तभी जितनी भी बस से रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस थी वो उसको केयरफुली सुनती थी. ओके. शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर. और वो क्या करती थी, शी पहले तो शी यूज टू लिसन और फिर देन शी यूज टू आस्क. आस्क मतलब पूछना. ठीक है, पूछताछ करना. शी यूज टू आस्क अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस. और डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है, क्वाइट एंड सेंसिबल क्वेश्चंस, शांत और समझदार क्वेश्चन. तो वो वैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछती थी. क्वाइट मतलब शांत, मतलब शांति से, सो दैट किसी को आइडिया भी ना पता चले. और सेंसिबल क्वेश्चंस क्या होता है, सेंस वाले मतलब समझदार. तो शांत और समझदार क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं, सॉरी वर्ड को क्या कहते हैं, डिस्क्रीट कहते हैं. तो वो कैसे क्वेश्चंस पूछती थी, डिस्क्रीट, जो कि क्वाइट भी होते थे और सेंसिबल भी होते थे. तो हियर एंड देयर मतलब, हियर एंड देयर का मतलब जो भी उसके पास आसपास उसको लोग मिलते होंगे, फॉर एग्जांपल नेबर्स मिलते होंगे या एनीवन, उनसे वो ये क्वेश्चंस पूछ लिया करती थी. और वो क्वेश्चंस रिगार्डिंग किसके होते थे, बस के रिगार्डिंग होते थे. ओके. दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी. और इसके थ्रू ही कुछ लोगों को बात करते हुए सुनते, उनकी कॉन्वर्सेशन सुनते, कुछ खुद क्वेश्चंस जो उसने पूछे, वैसे ही उसको क्या हुआ, शी पिक्ड अप मतलब उसको मिल गई, उठा ली डिटेल्स बेसिकली जो कहते हैं. सो उसने वेरियस स्मॉल डिटेल्स, जो छोटी छोटी डिटेल्स थी बस से रिलेटेड या बस की जर्नी से रिलेटेड, वो उसको मिल गई. ठीक है. और वो क्या डिटेल्स थी, द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम अ विलेज. तो फर्स्ट डिटेल उसको स्टूडेंट्स क्या मिली, यू हैव टू मार्क द स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट डिटेल जो वाली को मिली, ये आप ऐसे करके पॉइंट करके मार्क करेंगे. तो फर्स्ट डिटेल क्या थी, द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम अ विलेज. फर्स्ट डिटेल उसको मिली कि जो टाउन था, उसका टाउन, सॉरी उसका जो विलेज था वो टाउन से कितना दूर था, 6 miles दूर था. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे. तो फेयर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, किराया जिसको कहते हैं. the amount of money you pay to travel by bus, train और टैक्सी. तो फेयर बेसिकली क्या होता है, जो अमाउंट आपको पे करना पड़ता है किसी पर्सन को जिससे आप सर्विसेज ले रहे हो या जो आपको पहुंचा रहा है. ठीक है. और पहुंचाने वाले जो ट्रैवल मोड्स क्या हो सकते हैं, बस हो सकता है स्टूडेंट्स. ठीक है. फिर क्या हो सकता है, टैक्सी हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, ओके, एरोप्लेन भी हो सकता है. ये सब आपके फेयर होते हैं. ठीक है. जो आप अमाउंट पे करते हो फॉर द सर्विसेज, और फॉर द सर्विसेज ऑफ टैक्सी, ठीक है, देन ट्रेन एंड बस. ओके. सो फर्स्ट चीज उसको पता चली दैट द टाउन वॉज 6 miles away from a village. Then second things, the fare was 30 पैसा वन वे, मतलब